चलो, वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द लीनियर मेजरमेंट in surveying. Okay, now I am going to start with the scale. Now what is scale? As I have told you that we have to make a plan. Now how we are going to make a plan? Suppose there is a plan of 10 or 100 kilometers, then you have to draw that plan on the paper. So you need some scale, or that can be that must be in the same proportion that is on the ground. So you have to use the scale. Now what is scale? Scale is the ratio of the length of the length sorry ratio of the length of a line on a map to the length of the line on the ground. Suppose what does the scale will how the scale will help you? It will just give an idea what is the ratio of the proportion on the ground and on which you are making. Okay, so scale is defined as the length of the line on a map divided by the length of the line on the ground. It means whatever the line that is on the ground, it is in the same ratio that what you will do draw on your map. Okay, sorry, on your paper. So always remember, the in the denominator the relation will be of the ground. What is that on the ground, that will be in the denominator. It is clear. What is scale? Scale is the ratio. Map, whatever you are drawing, that will be on. Suppose you are taking you have seen the map. What is that? That is drawn on a particular scale. If you have a map, you will see India is very big, but on the chart paper or on the map that you will have, that is very small scale of that you will see. So this is what known as scale. It is clear what is scale? Yes, sir. Yes, sir. है ना? किसका रेशियो होता है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में सीखो. कोई भी चीज को, हम बड़ी चीज को अगर छोटी चीज में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? स्केल की जरूरत पड़ेगी. क्लियर? ठीक है. तो स्केल के लिए स्केल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? लेंथ ऑफ द लाइन ऑन अ मैप डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन और द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड. सेम जिस रेशियो में हमारा ग्राउंड पे है, उसी रेशियो में हमारे वो मैप पे होना चाहिए. क्लियर? अब स्केल के भी टाइप होते हैं. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल. दैट वन इज ग्राफिकल एंड सेकंड वन इज न्यूमेरिकल. सो ग्राफिकल स्केल सबको पता है. ग्राफ के माध्यम से हम ग्राफ एक सब लोग ने बनाया होगा, चार्ट बनाते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ग्राफ का यूज करते थे ना हम लोग, Yes, sir. है ना? मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सच सच बताओ. हाँ सर, आ रहा है ना? मतलब स्केल का क्यों हम यूज करने जा रहे हैं सर्वेइंग में, ये चीज क्लियर हो रही है ना? हमें क्या करना है? हमें मैप बनाना है. ठीक है, हमें कोई भी चीज का हमें क्या करना है? प्लान बनाना है. ठीक है, तो प्लान बनाने के लिए हमें चाहिए लेंथ और विड्थ, और उसका सेम रेशियो हम अपने प्लान में यूज करेंगे. क्लियर? हाँ सर. ठीक है. अब नाउ वी हैव द टू टाइप्स ऑफ स्केल. वन इज ग्राफिकल, जो आप लोग 10th 12th में यूज करके आ चुके हो. ठीक है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू यूज द न्यूमेरिकल स्केल. In numerical scale, again there is two types of scale. One is engineering scale, another one is representative fraction. Okay, now what is engineering scale? Suppose you are taking the scale, for example, 1 centimeter equal to 10 meter. What does it mean? Again, 1 centimeter equal to 10 meter means that 10 meter on ground will represent 1 centimeter on your plan or on your map. Clear? Yes, sir. है ना? Now when what is representative fraction? When your engineering scale will represent in the ratio that is known as representative fraction. Clear? देखो, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर आगे समझ नहीं आएगा. अब इंजीनियरिंग स्केल जो मैंने बताया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ये एक इंजीनियरिंग स्केल हमने ले ली. इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो इसको वी हैव टू रिप्रेजेंट देम दिस इन द रेशियो. अब ये रेशियो कैसे कन्वर्ट होगा? अब ये रेशियो कन्वर्ट होगा, एक मिनट में देखता हूं. इसमें बोर्ड है हमारे पास. अच्छा, आप लोग ने ये भी कर दिया.
चलो, बोर्ड की परमिशन नहीं है अभी, सब ठीक है ना? अभी आवाज आ रही है ना? बोर्ड शायद आप लोग को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाके आएगा। चलो अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग स्केल की जो हम बात कर रहे थे, मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज वी आर टेकिंग अ इंजीनियरिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब समझ आ रहा है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर को कैसे करेंगे हम? जो 10 मीटर ग्राउंड पे जितना 10 मीटर है, उसको हम लोग अपनी कॉपी में या अपने जो चार्ट में हम बनाएंगे, उसमें हम लोग कितना लेंगे? उसको 1 सेंटीमीटर लेंगे। क्लियर? यस सर। अब इसको मैं पूछ रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? कोई बताएगा? सर उसका मतलब नहीं समझ आया, क्या फ्रैक्शन? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव सर फ्रैक्शन नहीं समझ आया ना? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब है रेशियो ऑफ द इंजीनियरिंग स्केल। जो इंजीनियरिंग स्केल आपने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, इसका जो रेशियो आएगा, एक एग्जांपल में बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर, ठीक है? इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 10 मीटर को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। करोगे? हाँ। हाँ सर। 10 मीटर इज मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है? एक हाँ सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो हाँ, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। क्लियर? RF इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ द इंजीनियरिंग स्केल। क्लियर? हाँ सर। चलो, अब मुझे थोड़ा सा कोई बताएगा कि मैं अगर पूछूं कि लार्जर स्केल किसे बोलेंगे और स्मॉलर स्केल किसे बोलेंगे? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, इसमें से लार्जर स्केल कौन सा है और स्मॉलर स्केल कौन सा है? सर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर लार्जर होगा। कैसे? सर सर वो 1:1000 होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, और वन? और हाँ, और वो 1:10,000 होगा, तो मतलब पेपर पे और छोटा बनेगा वो। पेपर पे छोटा और मरेगा। देखो याद रख लो, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है ना तो स्केल हमारी छोटी है। ठीक है? हाँ सही भाई। बोला, सही बोला है, वही चीज है। लार्जर द स्केल मतलब सिंपल सी बात है। अब मैं देखो आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि जब आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लेके किया ना किसी भी चीज को, तो आप इजीली उसको मार्क कर पा रहे हो। ठीक है? आपकी जो स्केल है दैट इज द लार्जर स्केल। ठीक है? लेकिन उसी चीज को आपने बहुत छोटे में कर दिया। छोटे में क्या मतलब है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर कर दिया, तो वो स्केल क्या हो गई? छोटी हो गई। और ठीक है, तो उसमें आप चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो लार्जर द डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ठीक है, तो स्केल क्या हो जाएगी? और स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है? इसको इस तरह लिंक करके चलना कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे स्केल कम होती जाएगी। क्लियर? ठीक है? कमिंग टू द, अब देखो सारे अलग अलग ग्राफ हैं, ठीक है, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग स्केल है, तो इनका यूज क्या है? ग्राफिकल स्केल भी हो गया, तो इनका यूज क्या है? अब ग्राफिकल स्केल को डिफाइन करोगे तो ग्राफिकल स्केल इज अ लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप एंड मार्किंग द ग्राउंड डिस्टेंस डायरेक्टली ऑन इट। ठीक है? ग्राफिकल स्केल में आप डायरेक्टली मार्क कर लेते हो। नेक्स्ट इज ग्राफिकल स्केल have an advantage over the numerical scale, that the distance on the map can be determined by the actual scaling even when the map has shrunk। देखो अब ये फायदा है, ग्राफिकल स्केल का भी हम पहले यूज करते थे, अब न्यूमेरिकल स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो अभी तो मैं ग्राफिकल स्केल का एडवांटेज बता रहा हूं आपको। क्या देखो, पहली चीज तो ग्राफिकल स्केल में क्या एडवांटेज क्या है कि मान लो एक टाइम बाद, जैसे आज से 10 साल पहले हमने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, हमने कोई स्केल बनाई, अब क्या हुआ? वो स्केल जो पेपर हमने बनाया वो श्रंक कर गया। ठीक है? श्रंक मतलब जानते हो ना, टेम्परेचर और उसके कारण हमारा सिकुड़ना। ठीक है? श्रंक हो गया। तो श्रंक होने के कारण क्या होगी? हमारी जो हमने जो ये 1 सेंटीमीटर को टू 100 या 10 मीटर की जो स्केल बनाई है ना, वो हमारी स्केल हमें प्रॉपर नहीं दे पाएगी इन केस। और मतलब इसमें ग्राफिकल जो आप बनाओगे ना, वो दैट विल, अगर श्रंक भी हो जाएगा तो वो एरिया भी तो श्रंक हो जाएगा। ग्राफिकल स्केल का क्या मतलब होता था कि एज इट इज जो पॉइंट आपने लिया वो पॉइंट अपने ग्राफ पे रखा। ठीक है? तो उसमें जब पेपर श्रंक होगा तो वो एरिया भी श्रंक हो जाएगा। तो ग्राफिकल स्केल में एक एडवांटेज होता था पहले के टाइम में कि हमारा जो श्रंक होने के बाद भी सेम एरिया ही देगा। लेकिन इन केस ऑफ जब हम लोग जो बना रहे हैं न्यूमेरिकल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, वहां पे अगर श्रंक हो गया ना तो एरिया चेंज हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
सर एक बार रिपीट कर देते। देखो, कहने का मतलब है कि हमारा जो श्रिंकिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, हमने पेपर पे एक प्लान बनाया, ठीक है, अंकिता ने किस पे बनाया, ग्राफ का स्केल का यूज किया, और हर्षिता ने क्या किया, हमारा इंजीनियरिंग स्केल का यूज किया, ठीक है। अब क्या हुआ, आज से 10 साल पहले कोई प्लान बनाया था, ठीक है, किसी होटल का, किसी बिल्डिंग का कोई प्लान बनाया था, ठीक है। अब वो प्रॉपर स्केल से अंकिता ने क्या किया था, ग्राफ की हेल्प से बनाया था, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ में कोई स्केल का यूज नहीं किया, ग्राफिकल स्केल ही आती है अलग से, ग्राफ आपने देखा है ना, ग्राफ वाला, है ना, तो वो ग्राफ स्केल पे यूज किया। तो वहां पे जो भी चीज बनाई थी, थोड़ी मेहनत लगी अंकिता को, ठीक है, थोड़ी क्यों, बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी। अब 10 किलोमीटर का होगा तो कितने पेपर वो ऐड करेगी, ग्राफ बनाएगी, सब कुछ करेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगा होगा, बहुत टीडियस टास्क भी हुआ होगा। लेकिन इसी चीज को हर्षिता ने क्या किया होगा ना, हर्षिता ने आधे एक घंटे में कर लिया होगा विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, आधे एक घंटे में कर लिया होगा। लेकिन आज से 10 साल बाद जब दोनों का डेटा निकाला गया कि चेक करूं दोनों का डेटा सही था या गलत था, तो अब जब मैंने डेटा निकाला तो वो डेटा क्या हो जाता है, देखो कुछ टाइम के बाद ना आप देखे होगे, आज से अभी तो नहीं, फोर्थ फिफ्थ क्लास की आपकी जो कॉपी किताब होगी ना, नोट्स बनाए होंगे ना, वो क्या कर गए होंगे, श्रिंक कर गए होंगे, ठीक है, या तो श्रिंक कर गए होंगे या तो मम्मी ने कबाड़ में बेच दिया होगा, ठीक है। तो मतलब या तो कबाड़ बन गया होगा कुछ, मतलब ऐसी चीज हो गई होगी जिसमें वो चेंजेस आ गए होंगे। तो यही चीज जब मतलब दोनों का मैंने निकाला ना शीट, देखो ऐसा नहीं है, संभाल के रखी जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो वो जब निकाला गया तो अंकिता का तो एज इट इज था, मतलब श्रंक अंकिता का भी किया और हर्षिता का भी किया, लेकिन चेंजेस जो आए हर्षिता में, वो चेंजेस अंकिता में नहीं आए। क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि उसने ग्राफिकल किया था, बहुत मेहनत की थी, हर एक इतने बड़े बड़े चार्ट लगाए थे, इतनी बड़ी बड़ी ग्राफ का यूज किया था, एज इट इज पॉइंट था। मतलब कहने का मतलब है वहां पे उसने कोई अलग से स्केल का यूज नहीं किया था। क्या मतलब था, 10 मीटर को 10 मीटर पे ही दिखाया था। तो क्या हुआ, अगर 10 मीटर श्रिंक भी हुआ ना, तो वो पूरा का पूरा एरिया श्रिंक हुआ, समझ में आ रहा है। और यही चीज जो हर्षिता में हुआ, हर्षिता में क्या हो गया ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर की तो स्केल ले रखी थी, श्रिंक तो उसके में भी वही चीज हुई, ठीक है, उतना ही हुआ, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ जब आप 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर दिखा रहे थे, तो वो एरिया एग्जैक्ट नहीं देगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर। है ना। तो उस केस के लिए हमें एक लेना पड़ता है श्रिंकिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब हम तो हम ग्राफिकल मेथड से तो कर नहीं रहे, आज के टाइम में हम लोग किससे कर रहे हैं, हम वी आर यूजिंग द स्केल। तो स्केल जब हम कर रहे हैं तो वी नो दैट आफ्टर सम टाइम द श्रिंकेज विल अकर, ठीक है, श्रिंकिंग इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए हम पहले से श्रिंकिंग फैक्टर लेके चलते हैं, उसका हमें जो एरर आएगी उसको कैसे रिड्यूस करना होगा, क्लियर। इसलिए श्रिंकिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब श्रिंकेज नहीं हुआ था, तो हमारा जो, देखो इसके लिए डायरेक्ट दिया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज हम श्रिंकिंग के बाद चेंज कर दें ताकि हमारा श्रिंकेज फैक्टर निकल जाए, ठीक है। तो अगर मान लो बिफोर श्रिंकिंग x सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट ले रहे हो, दोनों पॉइंट के बीच में अगर x सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, और स्केल कुछ दी हुई थी, स्केल इज 1:1000, ठीक है, वही जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं 10 मीटर ले रहा था, उसी का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ जाएगा 1:10,000, स्केल दी हुई है और x सेंटीमीटर मैप पे है, ठीक है। तो ग्राउंड पे वो कितना हो जाएगा, अगर 1 की स्केल है तो हमारा x सेंटीमीटर मैप पे है, तो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, अंकिता बताओ फटाफट। सर एक बार फिर से बताना सर, 1:2 क्या? देखो अगर स्केल है 1:1000 की, ठीक है, और x सेंटीमीटर मैप पे डिस्टेंस है, तो ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है क्या? हाँ, 1:1000। अच्छा सर, तो फिर वो 10 हो जाएगा। सही है 10 मीटर। हर्षिता, सही है। सर 10x होगा। हाँ x। मतलब 1:1000 है और x सेंटीमीटर मैप पे दिखा रहा है, तो ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस होगी। 10x मीटर। 10x कैसे आएगा? हाँ, सर 10x मीटर भी सही है। जब मैं RF बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो मुझे मीटर और उसमें चाहिए ही नहीं। अगर मैंने बोला x सेंटीमीटर मैप, तो हमारा ग्राउंड भी तो सेंटीमीटर में आएगा ना, मीटर में कैसे आएगा। 1000 सेंटीमीटर। हाँ, आप समझ आया, हाँ। 1000 इंटू एक्स ऑन ग्राउंड, क्लियर। अब यही चीज में क्या आ गया, श्रिंकेज आ गया। तो आफ्टर श्रिंकेज कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, x सेंटीमीटर मैप में तो रहेगा नहीं, तो वो y सेंटीमीटर आ जाएगा
मान लो y आ गया, ठीक है, तो y सेंटीमीटर ऑफ मैप, तो ग्राउंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ग्राउंड डिस्टेंस तो अभी भी 1000x है। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो अभी बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड पे लिख के बताता तो मैं ज्यादा चीजें क्लियर होती। अभी ये चीज समझ में आई, अगर x सेंटीमीटर था तो 1000x ग्राउंड पे था, ठीक है, y सेंटीमीटर मैप पे आया तो अभी भी ग्राउंड पे कितना है? ग्राउंड पे सर कितना 1 होगा? कितना? तो एक बार फिर से बताइए पूरा क्वेश्चन। हाँ, सर x समझ आ गया, y अब क्या हुआ? y Y क्या, तो कहां से आया shrinkage। y? श्रिंकेज के कारण। y हमारा किस कारण आया? श्रिंकेज के कारण हो गया, हमारा मैप श्रिंक कर गया, ठीक है, तो हमारा मैप जो श्रिंक किया, अब ये नई हमारी जो मैप पे डिस्टेंस ही y आ गई, ठीक है, तो y सेंटीमीटर हमारा मतलब जो मैप पे आया, ग्राउंड पे कितना रहेगा? ग्राउंड पे तो अभी भी उतना ही है, 1000x। श्रिंकेज के कारण हमारा ग्राउंड थोड़ी चेंज हुआ, हमारा पेपर पे चेंज हुआ। क्लियर? हम्म हम्म। अंकिता आया समझ में? नहीं आया तो हाँ पूछो, हाँ देखो 2-3 बार बताऊंगा मैं, ये सर चीज समझ आया। इंपॉर्टेंट है। हाँ, आ गया ना समझ में? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है पेपर ही तो श्रिंक कर रहा है, हमारी ग्राउंड तो श्रिंक कर नहीं रही है, ग्राउंड तो जो थी वही रहेगी, ठीक है, तो हमारा पेपर श्रिंक कर गया, तो पेपर में हमारा जो चेंज हुआ उसके कारण हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि श्रिंकेज फैक्टर कितना होगा। तो अब हमारी जो स्केल हो गई, ड्यू टू द श्रिंकेज, दैट विल बी y डिवाइडेड बाई 1000 इंटू x। क्लियर हुआ? स्केल क्लियर हुई? हाँ सर। स्केल हाँ समझ में सर। आ गया? स्केल इज अगेन, स्केल के लिए दिमाग में याद रख लो, द डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। क्लियर? यही बताया था मैंने, है ना? तो डिस्टेंस ऑन मैप, जब आप श्रिंकेज के बाद क्या आ गया? y आ गया, और अभी ग्राउंड पे हमारी डिस्टेंस उतनी है, तो स्केल इज y अपॉन x 1000। अब y अपॉन x बाई इंटू 1000 में हमारी 1/1000 तो हमारी x जो टर्म आया, दैट इज ड्यू टू श्रिंकेज, तो y बाई एक्स इज टर्म्ड एज श्रिंकेज फैक्टर। क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना? y बाई एक्स इज श्रिंकेज फैक्टर और नोन एज श्रिंकेज रेशियो। यही चीज बतानी थी मुझे, ठीक है, तो श्रिंकेज फैक्टर विल बी y बाई एक्स, y इज नोन एज श्रंक स्केल, x इज द ओरिजिनल स्केल, ठीक है, तो अब आप खुद इमेजिन करो, श्रंक स्केल जो होगी, सॉरी, जो श्रिंकेज फैक्टर होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। ऐसा क्यों बताओगे? सर बिकॉज y तो छोटी हो गई ना, y x से छोटी हो जाएगी, तो फिर x वेरी बड़ा है गुड, तो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो। बड़ा है, बिल्कुल, ओरिजिनल स्केल तो हमारी ओरिजिनल ही रहेगी, है ना, श्रंक जो होगा वो हमेशा कम होगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, अब इसमें ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन देखो छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आगे के लिए क्लियर रहे, ठीक है। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू, ये चीज हो गई। अब इसी तरह करेक्ट डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा क्या? मेजर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है, मतलब जो करेक्टेड डिस्टेंस हमको निकालना होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज गिवन बाय द मेजर डिस्टेंस बाय द श्रिंकेज फैक्टर। क्लियर है? और इसी तरह जब ये डिस्टेंस की जगह एरिया हो जाएगा, अब आपको अभी तो मैंने बताया जो डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो, अगर एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? हर्षिता बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। जैसे करेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, तो करेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट मेजर डिस्टेंस है हमारे पास, उसको श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब इस डिस्टेंस से ही मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या करोगी? सर फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू रख दी जाएगी। हाँ, एरिया, एरिया इज व्हाट? लेंथ इनटू विड्थ हाँ, होता है। लेंथ इनटू विड्थ। हाँ। करेक्टेड एरिया यू विल हैव मेजर्ड एरिया, यहाँ पे डिस्टेंस एरिया आ जाएगा, मेजर्ड एरिया बाई श्रंक फैक्टर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो गया ना, लेंथ इनटू लेंथ, है ना? हाँ। तो यू विल हैव, देखो याद कर लो जो मैं बोल रहा हूं, करेक्टेड डिस्टेंस विल बी गिवन बाय मेजर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द श्रिंकेज फैक्टर, एंड मेजर्ड, सॉरी, करेक्टेड एरिया विल बी मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय द श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। क्लियर? है ना? अब अंकिता के लिए सवाल, अगर करेक्टेड वॉल्यूम निकालना है, अभी तो एरिया निकाला, अब वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा? सर उसका क्यूब। वेरी गुड, किसका क्यूब? मेजर्ड एरिया का। करेक्टेड हाँ वॉल्यूम विल बी मेजर्ड वॉल्यूम बाय श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब। क्लियर? हाँ सर। चलो, अब वर्नियर स्केल 12th में पढ़ के आए थे, याद है वर्नियर स्केल? हाँ सर।
आज जाके वर्नियर स्केल देख लोगे, ठीक है। वर्नियर में भी कोई बताएगा कौन कौन सी स्केल होती हैं? सर एक तो mm की थी शायद से। mm की थी, है ना। आज जाके वर्नियर स्केल का देखोगे, क्योंकि वर्नियर स्केल का थोड़ा बहुत यूज है, ठीक है। जब आप करते हो मेजरमेंट करते हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ जाएगा वर्नियर स्केल, है ना। उसके अंदर भी डायरेक्ट वर्नियर्स होते हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा वो कर लेना। रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा खुद से आप लोग देख लोगे, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल टाइप्स के भी वर्नियर आते हैं, डायगोनल स्केल भी आती है, तो थोड़ा सा देखना है वर्नियर स्केल एक बार, है ना, क्योंकि पिछली बार पहले पढ़े हुए हो तो ये चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। दोनों तरफ देख लेना, डबल फोल्डेड वर्नियर्स क्या होते हैं, है ना, डबल वर्नियर्स क्या होंगे, ये सारी चीजें एक बार देख लोगे आप लोग, खुद समझदार हो, है ना। वर्नियर स्केल का मैं, क्योंकि फिगर रहता ना, तो मैं बताता मेजरमेंट ली कैसे जाती है। दो दो स्केल होती है, जैसे एक मेन स्केल होगी, एक साइड में दूसरी वाली स्केल होगी, ठीक है। तो दोनों स्केल का मेजरमेंट जहां मैच करता है वहां से हम उनको मेजरमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब 2 डेसिमल तक जाने के लिए, है ना, वर्नियर स्केल का यूज होता है, ठीक है। 5.04 तक और जो मेजरमेंट होता है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए इनका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सटेंडेड वर्नियर और ये सब सारी चीजें होती हैं। अब मैं मेन आ रहा हूं अपने उस पर। नाउ मैंने एक वर्ड यूज किया था किसमें, वर्किंग प्रिंसिपल्स में, ठीक है। प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। कोई बताएगा व्हाट इज प्रीसीजन, व्हाट इज एक्यूरेसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर आई गेस प्रिसीजन इज क्लोजर, सबसे क्लोजर टू द करेक्ट वैल्यू। जैसे कि अगर 0 पॉइंट ज्यादा डेसिमल वाला प्रिसीजन होगा, 0.3 जीरो तक अगर हो गया, एंड एक्यूरेसी वेरी इज गुड, करेक्ट बट वेरी देन गुड, सही है। लेस। एंड व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी समथिंग लाइक वो भी करेक्ट वैल्यू है, बट इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, लाइक मे बी 1-2 डेसिमल पॉइंट्स कम हो सकते हैं उसमें। किसमें, एक्यूरेसी में? हाँ पक्का हर्षिता सही है? नहीं सर, एक्यूरेसी में ऑलमोस्ट एक्यूरेट आएगा, एज द वर्ड सजेस्ट। और but then it's प्रीसीजन फिर? precise, so it's very exact to the। सर प्रेसिजन का मुझे डाउट है, लेकिन एक्यूरेसी का मुझे ये लग रहा था। अच्छा चलो, मिस्टेक और एरर में डिफरेंस बता दो थोड़ा सा। क्या सर? मिस्टेक और एरर। सर एरर आता है कुछ पॉइंट्स का आता है, मिस्टेक शायद लार्ज मतलब काफी ज्यादा एरर होता है, तब उसको शायद मिस्टेक बोलते हैं। नहीं, ये सब वर्ड्स कुछ ऐसे नहीं है, मतलब एकदम लगते तो सेम ही सेम है ना। जैसे अभी अंकिता ने प्रीसीजन और एक्यूरेसी डिफाइन किया, गलत नहीं किया, सही किया। देखो नॉर्मल जब हम सोचते हैं ना, तो वही चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान रख लो, नाउ व्हाट इज परफेक्शन, वो व्हाट इज एक्यूरेसी, याद रखना। एक्यूरेसी को डिफाइन करोगे, डिग्री ऑफ परफेक्शन इज एक्यूरेसी। याद करो, 3 वर्ड है, डिग्री ऑफ परफेक्शन। जब भी कोई पूछे एक्यूरेसी क्या होती है, डिग्री ऑफ परफेक्शन। इज इट पॉसिबल, आप मतलब हर चीज में किसी एक्यूरेसी हो सकती है? नहीं। नहीं। तो ये चीज याद रखना, जब भी एक्यूरेसी वर्ड आएगा, दिस इज हाइपोथेटिकल, मतलब जो हम 100% एजम्पशन लेके चलते हैं ना, वो चीज होती नहीं है। तो डिग्री ऑफ परफेक्शन, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता। हर हर चीज का मतलब क्या होता है ना, एक टाइम आता है, जो वो कर्व पढ़ाया था ना, वो हाई मतलब वाला आता है, एंड वो भी आता है जिसपे एक बंदा मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेट कोई भी नहीं है, एक्यूरेसी कहीं पे भी अचीव नहीं होती, लेकिन वी ट्राई टू मतलब वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रीसीजन, ठीक है। जब एक्यूरेसी की तरफ आप बढ़ रहे हो, दैट इज नोन एज प्रीसीजन। कितनी चीज को आप मतलब प्रीसीजन को डिफाइन करना हो ना, तो याद रखना, डिग्री ऑफ फाइननेस एंड केयर विथ विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज डन, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रीसीजन। क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ फाइननेस एंड केयर विथ विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज डन इज नोन एज प्रीसीजन, ठीक है। किसी चीज को जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, अभी 100% एक्यूरेसी जब अचीव ही नहीं होती, तो आप उस चीज को कर ही नहीं पाओगे, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ एरर आएगी, ठीक है। तो जो आप जानबूझ के करते हो, अब देखो इसी चीज में मैं डिफाइन कर दे रहा हूं मिस्टेक और एरर। मिस्टेक जो आप जानबूझ के करो, ठीक है, जो आप मतलब आपको पता है, ठीक है, वो। और एरर इज ऑलवेज डिफाइंड एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। जो आपने मेजर किया और उसमें से अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उसको माइनस कर दो, दैट इज योर एरर। क्लियर है? 4 वर्ड मैंने बोल दिए, क्या क्या? परफेक्ट, एक्यूरेसी, है ना, हमारा प्रिसीजन, हमारा मिस्टेक और हमारा एरर। कोई चीज रिपीट करनी है?
सर वो प्रिसीजन वाला डेफिनेशन इसका प्रिसीजन वाला ना, डिग्री ऑफ फाइननेस, ठीक है, एंड केयर विथ विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज डन. Degree of fineness and care with which any physical measurement is done is called precision. Clear? यस सर. हाँ सर. ठीक है, चलो अब एरर मैंने बता दिया, करेक्शन कोई बताएगा? एरर क्लियर हो गई. करेक्शन क्या होगा? व्हाट इज करेक्शन? सर एरर आने के बाद आप कितना प्रिसाइज उस वैल्यू को करेक्ट कर सकते हो. हाँ, ऐसे मैं डिफाइन करने को बोलूँ, करेक्शन को डिफाइन कैसे करनी है. जैसे मैंने एरर को डिफाइन किया ना, जस्ट अपोजिट ऑफ एरर इज करेक्शन, ऐसा ही होगा, है ना. मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज एरर, देन करेक्शन इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. वेरी गुड, यही चीज सुननी थी. ठीक है, और यही करेक्शन का नेगेटिव पार्ट इज एरर. क्लियर हो गया? हाँ. चलो अब मुझे फटाफट से बताओगे कौन कौन सी एरर हो सकती हैं. सर वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो तो एरर हो सकती है. हाँ, वेरी गुड. और कौन सी एरर हो सकती है हर्षिता? इंस्ट्रूमेंट में हो सकती हैं. हो सकता है ऑब्जर्वेशन करते टाइम एरर आ सकती है. बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन एरर हो सकती है. देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर कौन सी होगी? जो कंटिन्यूअस होती जा रही हैं, सिस्टमैटिक. ठीक है, अब देखो और रैंडम एरर्स कौन सी होंगी? रैंडम एरर्स जो कि इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेबल. ठीक है, जो आप बता नहीं सकते हो. सिस्टमैटिक एरर तो आपको पता है ये चीजें एरर आएंगी, जो अभी आप लोगों ने एग्जांपल दिया ना, वो सारे सिस्टमैटिक एरर है. ठीक है, अब रैंडम एरर में मतलब सिस्टमैटिक एरर क्या होंगी ना, कम्युलेटिव होंगी, कभी प्लस कभी माइनस. ठीक है, तो मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि प्लस ही होंगी या नेगेटिव होंगी. ठीक है, एक बार सुन लो, इट कैन नॉट बी कम्युलेटिव. ठीक है, फॉलोइंग मैथमेटिकल लॉ स्पेसिफाइड इट इज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू. मतलब रैंडम एरर ना कभी भी चेंज हो सकती है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, होगी नहीं होगी कोई क्लियर नहीं है. इट कैन नॉट बी कंट्रोल बट नेवर रिमूव्ड कंप्लीटली. इट कैन नॉट बी एक्सीडेंटल और कंपेंसेटिंग एरर. मतलब कहने का मतलब है ना कि आप रैंडम एरर को कभी रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर को थोड़ा बहुत आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन रैंडम एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, एक मिनट, ये हो गया. डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर कॉल्ड बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग केयरलेसनेस. अब देख लो थोड़ा सा, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक इज caused due to the misunderstanding, carelessness, poor judgment and this can be eliminated if discovered. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब मिस्टेक को आप जब तक उसका कॉज ना पता हो ना, तब तक उसको रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, तो मिस्टेक का जब तक कॉज ना पता हो. इसी तरह एरर क्या होता है? दिस डज नॉट arise due to the mistake, it is due to the physical condition of the instrument like temperature at the time of the measurement. वही चीज जो अभी अब बताई ना आपने, ऑब्जर्वेशन एरर हो गई. ठीक है, और क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई. तो ये सारी चीजों को हम मतलब रिमूव कर सकते हैं. दैट विल बी द पार्ट ऑफ एरर. ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ वी आर कमिंग टू द लीनियर मेजरमेंट. देखो, लीनियर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहां से ध्यान से हर चीजें सुनते जाओ. ठीक है, ताकि अब देखो, अभी नोट्स मत बनाओ, जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा वैसे भी तो आप नोट्स बना सकते हो, आपके पास रहेगा ये लेक्चर. ठीक है, तो नाउ आई एम कमिंग टू द लीनियर मेजरमेंट. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सर्वेइंग इज टू प्लॉट द मैप ऑफ एन एरिया. मैंने शुरुआत से ही बताया कि सर्वेइंग क्या होती है. इट इज द आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस. वो रिलेटिव पोजीशंस हम किस लिए निकाल रहे थे? टू प्लॉट द मैप ऑफ अ एरिया. ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हमें जब एरिया का प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि लीनियर मेजरमेंट हमें निकालने हैं. ठीक है, जब पॉइंट्स आप ढूंढ रहे हो तो उनके आधार पे आप लीनियर मेजरमेंट ही तो करोगे. तो सबसे पहला इज मेन पर्पस ऑफ द सर्वेइंग इज टू प्लॉट द मैप ऑफ अ एरिया एज अ मैप इज प्लॉटेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सिंपल से पता है, आप वर्टिकल प्लेन में तो पहले नहीं करोगे. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द और प्लॉट द मैप ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, द डिस्टेंस शोन आर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस. हमेशा जो हमारा जो डिस्टेंस लोगे दैट विल बी ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन. When the slope distance are measured in the field, these are always reduced to the equivalent horizontal distance for the preparation of the map.
कहने का मतलब क्या है कि आपका सबसे पहला काम क्या होता है, आपको किसी भी चीज का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो पॉइंट्स आपने डिसाइड किए, अभी सर्वेइंग से आपने पॉइंट्स निकाल लिए, अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे ताकि आप आगे बढ़ सको या मैप बना सको। क्लियर? ठीक है, दिस इज नोन एज लीनियर मेजरमेंट। क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आते हैं नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लीनियर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। लीनियर का मतलब समझिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी आप मेजर करोगे दैट इज व्हाट कम्स अंडर लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला इज डायरेक्ट मेथड। नाउ सबसे पहला डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आप किस चीज का यूज करोगे? इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम चेन एंड टेप। ठीक है, जब भी आपके पास लीनियर मेजरमेंट की बात आई तो दिमाग में एक ही चीज बननी चाहिए, सबसे पहले क्या आपको क्या करना है, चेन एंड टेप की मदद से आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हो। उसके अलावा भी मेथड है, ऐसी बात नहीं है। देखो जो आपके सिलेबस में दिए हुए ना कुछ कुछ चीजें दी हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल मेथड। अब ऑप्टिकल मेथड जानते हो, ऑप्टिक्स सब लोग पढ़ के आए हो, तो ऑप्टिकल मेथड जिसमें हम यूज करते हैं टेकोमीटर। ठीक है, TACHOMETER। ठीक है, इन ऑप्टिकल मेथड यू विल यूज द टेकोमीटर। ठीक है, अब टेकोमीटर किस पे काम करता है, कोई बताएगा कुछ थोड़ा सा? टेकोमेट्री पढ़ के आए हो आप लोग? नहीं पढ़ा है टेकोमीटर? सर, टेलीस्कोप वगैरह। हाँ, वेरी गुड, टेलीस्कोप का यूज होता है। अब एक और चीज यहां पे मैं बता दे रहा हूं, टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन सुना है? शायद लग रहा है। लग नहीं रहा है, अब नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। देखो टोटल स्टेशन वर्क किस पे करता है? इंफ्रारेड पे। ठीक है, इंफ्रारेड रेज होती हैं आजकल, तो ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पूरा रेज पे ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं ऑप्टिकल मेथड में। यूज टेकोमीटर। ठीक है, टेकोमीटर का करते हो, इसमें और भी है, टोटल स्टेशन हो गए, EDMI। ठीक है, EDMI इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इसमें कैरियर वेन्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बेस मतलब जो हमें लीनियर मेजरमेंट पढ़ना है, लीनियर मेजरमेंट में हमें चेन का यूज पढ़ना है। ठीक है, कैसे चेन से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर कमिंग टू द लीनियर मेजरमेंट। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड यूज्ड ऑफ चेन एंड टेप। तो वी आर कमिंग टू द चेन सर्वेइंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज चेन सर्वेइंग? चेन सर्वेइंग को डिफाइन कर रहा हूं, डायरेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया। सिंपल सी बात है, आप चेन सर्वेइंग का यूज कहां करोगे? स्मॉल एरिया के लिए करोगे। ठीक है, देखो चेन्स का ऐसा बात नहीं है, डीमेरिट्स भी हैं। आप टेप पे क्यों गए? क्योंकि सिंपल सी बात है, चेन से जो काम नहीं हो पा रहे थे, फिर आपने टेप से यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो सब चीज का मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो आज चेन सर्वेइंग पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू व्हाट इज चेन सर्वेइंग। इट इज द डायरेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया। मैंने आपको बताया था। अब मेरा सवाल है, पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, देखते हैं कौन पढ़ के आया है। अंकिता ने पढ़ा नहीं है तो हर्षिता से ही क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं बोल रहा हूं, अंकिता इज फॉलोअर एंड हर्षिता इज अ लीडर। ठीक है, अब मुझे बताना कि जब हर्षिता शुरुआत मतलब जब आप सर्वेइंग का स्टार्टिंग कर रहे थे तो आपके पास 12 एरोज थे। ठीक है, 12 एरोज थे, और जब आपका सर्वेइंग एंड हो गया, अब आपके पास 6 एरोज हैं। ठीक है, और आपके पास चेन थी 30 मीटर की चेन थी। तो आप बताओगे आपने कितना मेजरमेंट कर लिया? सर 180। पक्का? हाँ सर। अच्छा, जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा, इसमें जो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि सर ये बताओ कि वो, वैसे तो मैं अंकिता से चल पूछूं, अंकिता सही आंसर है? सर हाँ, 6 into 30। देखो पहली चीज इंटरव्यू का क्वेश्चन है, और दूसरी चीज आपको ये सवाल पूछना था, सर अंकिता के पास कितने एरोज हैं? क्यों नहीं पूछा ये? मैंने क्या बोला था? यू विल हैव टू काउंट द एरोज ऑफ फॉलोअर, नॉट द लीडर। क्यों ऐसा बताओगे? बात तो वही है। अगर आपने आपने लीडर का बता दिया तो लीडर के कितने बचे हमने माइनस कर दिया। लेकिन क्या जरूरी है कि हर्षिता सारे एरो लेके आई होगी, एक दो गिरा दी होगी तो?
हाँ सर फॉलोअर के पास एरो होना जरूरी है, क्योंकि लीडर बिल्कुल। आगे जाता जाएगा और फॉलोअर वो एरो लगाता हाँ, जाएगा। अब हर्षिता ने निकाला निकाला तो 2 एरो था, एक लगाया और एक गिर गया। अब काउंट तो हो जाएंगे हर्षिता के, इसलिए क्वेश्चन ये पूछना है सर ये बताइए फॉलोअर के पास कितने एरो हैं। समझ गए? ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कितने एंटेटिव रहते हो हमेशा। मैंने उस दिन भी बोला था यू हैव टू काउंट द एरोज ऑफ फॉलोअर हमेशा। ठीक है, लीडर के एरो से मतलब ही नहीं है हमें। जब आप अगर वो पीडीएफ पढ़ते ना फॉलोअर लीडर वाली, पता नहीं मैंने दी है नहीं दी है, शायद नहीं दी है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है यू हैव टू काउंट द एरोज ऑफ फॉलोअर। ठीक है, लीडर के एरोज से मतलब ही नहीं है हमें। ठीक, क्लियर? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चेन सर्वेइंग। नाउ व्हाट इज चेन सर्वेइंग को डिफाइन करना होगा, ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द डिस्टेंस आर मेजर विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। यही बताया था मैंने, चेन सर्वेइंग को डिफाइन करना होगा तो ऐसे ही करोगे। ठीक है, जिसमें चेन और टेप का यूज कर लो, उसको बोल देते हैं चेन सर्वेइंग। और जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज चेनिंग। पिछली बार मैंने थोड़ा सा बताया था, है ना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेनिंग। दिस इज ऑलवेज यूज फॉर द स्मॉल एरिया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ऑफ चेनिंग द सर्वे टीम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोअर हु विल, फॉलोअर को होल्डिंग भी कहा, होल्डर भी कहा जाता है, होल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, देखो फॉलोअर हु इज होल्डिंग 0, है ना, एंड द लीडर होल्डिंग 30 मीटर चेन। ठीक है, मतलब सॉरी, कहां से स्टार्ट करना है, दैट विल बी मतलब होल्डेड बाय द, क्योंकि देखो क्या हो रहा है इसमें, एक और नाम क्यों दिया जा रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग का जो चेन होगी ना, चेन वैसे देखो दोनों तरफ इक्वल होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है लीडर जो होल्ड करेगा ना, लीडर विल होल्ड द 30 मीटर चेन। और यहां से जैसे हर्षिता क्या करेगी, क्या बोलते हैं, हर्षिता को मैंने लीडर बनाया था ना, तो 30 मीटर चेन को आगे से होल्ड करके वो आगे की तरफ जाएगी, और पीछे से जो अदर एंड होगा दैट विल बी होल्डेड बाय द अंकिता। ठीक है, तो होल्डिंग 0 बाई अंकिता एंड होल्डिंग 30 मीटर बाई हर्षिता। ठीक है, इतनी लेंथ की। लीडर ड्राइव्स द एरो एंड फॉलोअर कलेक्टेड। ठीक है, लीडर जो होगा 30 मीटर के बाद एरो लगाएगा, उसके बाद फॉलोअर्स को कलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ द एरोज विद फॉलोअर्स सिग्निफाइज द नंबर ऑफ द चेन लेंथ मेजर्ड। क्लियर, ये चीज बता रखी थी मैंने। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर ऑफ चेन सर्वेइंग। अब प्रोसीजर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, ऑफसेट। ऑफसेट याद है? ऑफसेट क्या था? पिछली बार फिगर भी दिखाए थे ऑफसेट्स के। हाँ सर, वो चेन में कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे थे। क्या करता है ऑफसेट? सर उसमें मतलब फर्स्ट वाला ऑफसेट जो था वो शायद 2 मीटर पे था, तो उसमें जैसे 2 लूप्स जैसे निकले होते हैं, तो मतलब इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, कुछ ऐसा ही था। हाँ, पिछली बार जो सर्वे लाइन और बेस लाइन ये सब पढ़ाई थी वो देखा था थोड़ा। देखो ऑफ ऑफसेट क्या कर रहा है ना, किसी भी चीज की पर्टिकुलर पॉइंट को, जैसे आपने बेस लाइन बना ली, अब बेस लाइन से आपको आगे की स्टडी करनी है कि आसपास क्या है, पॉन्ड है, आसपास क्या है, हॉस्पिटल है, या आसपास कोई चीज है, तो ये दिस विल बी डन बाय द ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, 90 डिग्री, 3 तरीके के ऑफसेट बताए थे, और भी कई तरीके के ऑफसेट होते हैं, अभी ऑफसेट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऑफसेट 2 तरीके के होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक और होता है ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, ऑब्लिक अलग अलग एंगल पे होगा। ठीक है, तो 2 तरीके का ऑफसेट है, तो इन ऑफसेट का यूज करके हम आसपास के एरिया का भी सर्वे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वेइंग। ठीक है, हमने एक बेस लाइन बनाई, उसके आधार पे हम आगे की लेंथ देखेंगे, कितनी दूरी पे पॉन्ड आ रहा है, कितनी दूरी पे वो चीज आ रही है, तो दैट इज डन बाई द ऑफसेट। ठीक है, in chain surveying, various points are located with the help of chain and tape. For small area, details of the various points can be collected using the ties and offsets. Offsets are the lateral distance measurement. Lateral distance measurement मतलब apart from the baseline, the offset. Offsets are the lateral distance measured from the survey line to the station whose details to be collected. ठीक है, जहां की डिटेल हमें लेनी होती है. It is used for the small area, for large area, but for the large area, errors introduced due to the large offset will be more. ठीक है, कहने का मतलब है लार्ज एरिया के लिए करोगे तो एरर ऐड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो वी अडॉप्ट ट्रायंगुलेशन इन विच द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स इन डिफाइनिंग बाय द साइज ऑफ द ऑफसेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब देखो ट्रायंगुलेशन यहां से आया हर्षिता का सवाल। ठीक है, हम ट्रायंगल पे क्यों जा रहे हैं ना, हम चाहे तो ऑफसेट की मदद से बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हमें एरर्स आनी ज्यादा शुरू हो जाएंगी। देखो ऑफसेट का क्या है ना, ऑफसेट क्या करेगा, 90 डिग्री पे या फिर कुछ 45 डिग्री या 135 डिग्री पे पर्टिकुलर वो बता सकता है कि इस डिस्टेंस पे ये चीज है, लेकिन उसके बीच की चीजें जो बचेंगी उसमें
तो इसलिए हम जाते हैं ट्रैंगुलेशन पे। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, सबसे आसान जो ज्योमेट्री है ना हमारे पास, दैट इज ट्रैंगल्स। ठीक है, ट्रैंगल्स देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे भी उसी ट्रैंगल से रिलेट करता है। क्या बताता था वो, परपेंडिकुलर पॉइंट ले लो या दो पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट निकालो। इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब साफ साफ है कि इफ वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रैंगल्स, छोटे छोटे ट्रैंगल्स बना ले, ठीक है, उसके बाद हम वो चीज करें तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी ना वो ज्यादा अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? तो वी आर गोइंग टू अडॉप्ट ट्रैंगुलेशन। ठीक है, ट्रैंगुलेशन भी पूरी एक सर्वेइंग है। मैंने बताया था ऑन द पर्पस ऑफ द सर्वे देयर इज वन मोर सर्वे, दैट इज ट्रैंगुलेशन। और इस तरह ट्रेवर्सिंग भी थी, आप ट्रैंगल भी बना सकते हो, फिर ट्रेवर्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ट्रैंगुलेशन हमारा चेन सर्वेइंग में बेस्ट रहता है, जो भी पहले के टाइम से भी हो आ रहा है, तो ट्रैंगुलेशन हम कर लेते हैं। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं? हाँ सर। चलो, नाउ कमिंग टू द, पिछली बार जो बताए थे मेन स्टेशन और ये सारी चीजें। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा, जब हम साइड पे जाते हैं, जब हमारे पास ओपन एरिया है, तो सबसे पहले हम कुछ स्टेशंस बनाते हैं। जो जो स्टेशंस हम बनाते हैं दैट इज नोन एज मेन स्टेशंस। ठीक है, तो मतलब एंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मेन स्टेशंस बना लेंगे अपने। ठीक है, फिर जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी उस लाइन को जो ज्वाइन करेगी दैट विल बी नोन एज हमारा बेस लाइन। क्लियर? ठीक है, अब हमने बेस लाइन बना ली, हमने मेन स्टेशन बना लिए। अब इसके बाद जो हम स्टेशंस एक दूसरे से जोड़ेंगे दैट इज नोन एज टाई स्टेशंस और सब्सिडरी स्टेशंस। ठीक है, तो हमारे टाई स्टेशंस हो गए, सब्सिडी स्टेशंस हो गए, टाई स्टेशंस को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम टाई स्टेशंस के बाद भी कुछ लाइन बनाते हैं दैट इज नोन एज चेक लाइन। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें की होती हैं, इनको फिगर वाइज देखोगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर चेक लाइन मेन स्टेशन होता है ना, इट इज द पॉइंट वेयर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स। ठीक है, अब मेन स्टेशन ऐसा बनेगा जहां ट्रायंगल के जो दो साइड्स है वहां मीट करते हो। ठीक है, एंड दीज स्टेशंस गवर्न द बाउंड्री ऑफ द एरिया। क्यों? देखो, अब ट्रायंगल हम यहीं से बनाना शुरू कर रहे हैं, मेन स्टेशन हमने क्या कर दिया, बेस बना लिया। अब बेस से हम तीसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अब ये क्या हो गया, एक एरिया तैयार हो गया। ठीक है, अब एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, ऐसे ही पूरे एरिया, पूरा हम जितना प्लॉट होता है प्लॉट का पूरा एरिया बना के कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमारे पास एरिया है, कितना हमारे पास लेंथ है, कितना हमारे पास विड्थ है। क्लियर? ठीक है, तो मेन स्टेशन का यही काम होगा। और मेन सर्वे लाइन का क्या काम होगा, दीज आर द लाइंस जॉइनिंग द मेन स्टेशन, जो होती हैं दैट इज गोइंग टू बी जॉइन द मेन स्टेशन। टाई स्टेशन का क्या काम होता है, आर द स्टेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मेन स्टेशन। ठीक है, टाई मतलब किसी चीज को और कनेक्ट करना है, तब उसके लिए टाई और इसका काम होता है। ठीक है, इसी तरह बेस लाइन मैंने बताया इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन विच जनरली पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया टू बी सर्वे। ठीक है, मतलब बेस लाइन तो पूरे एरिया को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती हो। ठीक है, एक्चुअल इक्वल पार्ट्स में नहीं लेकिन लगभग। ठीक है, तो दैट इज मेन सर्वे लाइन और बेस लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक लाइन और प्रूफ लाइन किसे बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। इट इज नॉट यूज फॉर प्लॉटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जिनका यूज हम कर सके चेक करने के लिए कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत। क्लियर? हाँ सर। अब चलो, चेनेज जो मैंने बताया, चेनेज को डिफाइन कर लो। चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे लाइन। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चेनेज मतलब कहने का मतलब है जिस ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना, चेन की मदद से जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो दैट इज नोन एज चेनेज। ठीक है, अब देखो इसी में जो आप ट्रायंगल बनाते हो ना, अब दो चीज समझो। आपने तो ये स्ट्रेट लाइन का ट्रायंगल बना दिया। आप ये सोचो, ये तो प्लेन सर्वेइंग का काम चल रहा है। अगर जियोडेटिक सर्वेइंग होता तो जियोडेटिक सर्वेइंग में आप कैसे काम करते? ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वेइंग में ये ट्रायंगल ना होके वहां पे क्या टर्म दिया जाता है, दैट इज स्फेरिकल ट्रायंगल। क्यों स्फेरिकल ट्रायंगल? क्योंकि यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन थी वो क्या होगी, कर्व होगी। ये भी कर्व होगा, नीचे से भी कर्व होगा, ऊपर से भी कर्व होगा। क्लियर है? तो दैट इज नोन एज स्फेरिकल ट्रायंगल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, या इन दोनों का देखो, जो भी हम ट्रायंगल बनाते हैं ना, वी विल वांट दैट आवर ट्रायंगल शुड बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो वहां पे जो एंगल चेंज होता है वो उसका रेंज दिया गया, दैट विल बी फ्रॉम 30 डिग्री टू 120 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है स्फेरिकल ट्रायंगल और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दैट विल बी 1 सेकेंड। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 सेकेंड होना चाहिए। बाकी इसमें और कोई चीजें नहीं पूछती जाती। ये पूछा जाता है बेस्ट ट्रायंगल कौन सा रहेगा, तो दैट विल बी रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 120 डिग्री। ठीक है, इनके बीच में ही जो ट्रायंगल का एंगल हो तो हमारा बेस्ट, हमारा ट्रायंगल मतलब वो रहता है। क्लियर?
हाँ सर। ठीक है, तो अब बता दिया हम लोग जो अपना चेन सर्वे पढ़े जा रहे हैं उसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज द चेन। ठीक है, अभी चेन की बात कर रहे हैं तो चेन यूज कर रहे हैं। अब चेन भी कई तरीके की होती है, बताएगा कोई कौन कौन सी चेन होती है? सर नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। हमारे पास 4 तरीके की चेन होती हैं। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट वन इज गंटर्स चेन, सेकंड वन इज रेवेन्यू चेन, मेट्रिक चेन, इंजीनियरिंग चेन। 4 चेन मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे याद करो फिर से। गंटर्स, रेवेन्यू, इंजीनियरिंग, मेट्रिक। नाउ व्हाट इज गंटर्स चेन? गंटर चेन इज ऑफ 66 फीट, होती है 66 फीट की, जो जिसमें होते हैं 100 लिंक। अभी मैं बताऊंगा, वो उस दिन लिंक दिखा रहा था ना, एक लिंक कितना होता है, 2 लिंक कितना होता है। तो बस याद करो, गंटस चेन 66 फीट 100 लिंक, रेवेन्यू चेन 33 फीट 16 लिंक, इंजीनियरिंग चेन 100 फीट 100 लिंक, एंड मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन अभी मैंने बताई कौन कौन सी, हर्षिता बताओ कितने कितने मीटर की? हर्षिता, हाँ सर। मेट्रिक चेन कौन कौन सी बताई मैंने? बोलो, बताई नहीं सर। मेट्रिक चेन होती सर है 20 मीटर। 10, हाँ, 20, 10 5। 20 नहीं, सिर्फ 20 और 30। अच्छा। ठीक है, मैंने शुरुआत से बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गंटर्स, रेवेन्यू, मेट्रिक और हमारी इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉरी, इंजीनियरिंग पहले फिर मेट्रिक है ना। देखो फिर से बोल रहा हूँ, गंटर्स चेन 66 फीट 100 लिंक, हमारा रेवेन्यू चेन 33 फीट 16 लिंक। ठीक है, इंजीनियरिंग चेन 100 फीट 100 लिंक, मेट्रिक चेन 20 मीटर 30 मीटर, 20 मीटर में 100 लिंक, 30 मीटर में 150 लिंक। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करना है अंकिता। नहीं सर। याद हो जाना चाहिए, मेरे साथ साथ रिपीट करना है। ठीक हाँ है, सर, याद हो गंटर्स, गया। रेवेन्यू, इंजीनियरिंग, मेट्रिक। गंटर 66 100 लिंक, रेवेन्यू 33 फीट 16 लिंक, हमारा इंजीनियरिंग 100 फीट 100 लिंक, मेट्रिक इज 20 30, 20 मीटर इज 100 लिंक, 30 मीटर इज 150 लिंक। क्लियर? और छोटी छोटी देखो यूनिट्स, यूनिट्स में ना, 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, कोई बताएगा? 1 माइल इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? ये सब पहले यूज की जाती थी यूनिट्स। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए 1 माइल इज इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर एंड 80 गंटर्स। ठीक है, तो 80 गंटर चेन अगर आप लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइल। तो याद कर लो, एक मील कितना होता है। हम पहले के टाइम में होता था ना, एक एक दो दो मील लोग चल जाते थे। ठीक है, तो एक मील कितने के बराबर हो गया? 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, एंड 80 गंटर्स चेन। ऐसे ही आपने सुना होगा 1 एकड़। एकड़ सुना है? एकड़ किसकी यूनिट है? एरिया। वेरी गुड, सुना है ना अंकिता? 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? कोई बताएगा? बोलो, याद नहीं है सर। याद कर लो, 1 एकड़ इज इक्वल टू, पहली चीज मीटर में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। दैट इज 4046.856 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई गंटस चेन का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये यूनिट्स हैं, है ना। यूनिट्स देखो बहुत ज्यादा नहीं, एक एक बार देख लेना, काम हो जाए, बस इतना हमारा चाहिए। ऐसे ही यार्ड होता है, एक यार्ड सुना है? एक यार्ड। हाँ अब हाँ सर। देखो, सर। हाँ, यूनिट्स में खेलना आना चाहिए। देखो पता है, ये आप ऑटो कैड भी करोगे ना, तब भी वहां यूनिट का खेल होता है। पता है, आपने फीट का किसी और चीज में कर दिया, तो एक यार्ड में बताओ कितना फीट होता है, या कितना मीटर ही होता है। चलो, आप मीटर से रिलेट करते हो ना, याद कर कोई बता रहा है? सर 1 मीटर। नहीं। एक यार्ड में होता है 3 फीट एंड एक बोल सकते हो 0.914, एग्जैक्ट पता होना चाहिए, 0.9144 मीटर। ठीक है, ये था थोड़ा सा चेन के बारे में। चेन हमें यूज करना है इसलिए मैंने बता दिया। थोड़ा सा आते हैं टेप के बारे में। टेप पता है? टेप तो पता होगा, टेप यूज किया आपने। टेप कौन कौन से टाइप की होती है? फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, मैं नहीं जाता बहुत सर ज्यादा। हाँ बताओ। यूनिट्स, यूनिट्स के अकॉर्डिंग। टेप देखी हो ना, टेप से मेजरमेंट करते हो आप लोग। हाँ हाँ, हाँ मेजरिंग टेप सर। सर। हाँ, समझ गए। टेप कौन कौन सी टेप्स होती है, मैं टाइप्स पूछ रहा हूँ अभी। यूनिट तो अभी छोड़ दो। सर टाइप्स का तो पता नहीं, बस 2 देख रहे हैं। बताओ, मतलब एक तो नाम तो पहले जो बताओ। यूज करते हैं एक टेलिंग नाम क्या टेप है होता टेप है का? जो हम लोग का। नाम नाम क्या है टेप का?
नाम तो नहीं पता, तो एक दो टेलर यूज करते हैं और मटेरियल एक कौन हम से लोग यूज करते हैं। तो याद कर वैसे लो। तो बोलो बोलो हर्षिता। मटेरियल के हिसाब से तो सर स्टील होता है, वेरी गुड। और एक वो होता है, वो सिंथेटिक जैसा कुछ होता है। हाँ चलो अब मैं बताता हूँ। हमारे पास कितने टाइप है, क्लोथ क्लोथ एंड लेनिन टेप, ठीक है, उसी को लेनिन बोला जाता है, जो जीन्स पहनते हो ना लेनिन की, दैट इज क्लोथ एंड लेनिन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इनका स्पेसिफिकेशन। मेटेलिक टेप किसमें क्या कौन कौन सी वो होती है, दैट इज ब्रास एंड कॉपर होता है, स्टील टेप में स्टेनलेस स्टील होता है, और इनवार टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल मैक्सिमम टाइम इनवार टेप यूज किया जाता है क्योंकि उसमें हमारा कम से कम एरर होने की चांसेस होती हैं। ठीक है, तो इनवार टेप इज मेड ऑफ अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। ठीक है, दैट इज हाईली एक्यूरेट टेप। अगर मैं पूछूं सबसे एक्यूरेट टेप कौन सा है, यू विल टेल इनवार टेप, INVAR। ओके, ठीक है। क्यों इनवार टेप होता है, अब यहाँ पे भी वही वाला क्वेश्चन जो बॉन्डिंग में हम लोग यूज करते थे कंक्रीट और स्टील में, वो टर्म याद आ रहा है? जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कितनी बार पूछ रखा है, ये तो याद हो गया होगा। अंकिता बताइए, क्या बॉन्डिंग सर? क्यों, हाँ कंक्रीट और स्टील हमारा बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द, सर उनका थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है वेरी इसलिए। गुड। यहाँ पे भी इनवार टेप का वेरी लो होता है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर थर्मल एक्सपेंशन होगा तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर के कारण वो चेंज होने लगेगा। और टेप में आपने देखा होगा, जो आप लोग टेलर वेलर जो टेप यूज करते हैं, चलो वो लोग का तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 0.1 mm 1 mm से फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप सोचो, हम लोग के लिए जो टेम्परेचर में राइज कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, या श्रिंक कर जाए, या मतलब बढ़ जाए, तो हमारी कितना मतलब डिफरेंस आ जाएगा। जो आप टेप से मेजर करोगे, मान लो 100 किलोमीटर मेजर करना है, 20-20 मीटर का आप करोगे, तो एरर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा टेप चाहिए जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो या कम हो, ये बताओ। ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। वेरी गुड। वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो, दैट इज फॉर इनवार टेप। तो इसलिए इनवार टेप इज हाईली एक्यूरेट टेप। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको ही बोलते हैं इट इज द वेरी सॉफ्ट एंड डिफॉर्मेबल इजी, सो वी मेजर द बेस लाइन फ्रॉम दिस। ठीक है, इसीलिए जब भी बेस लाइन बनाओगे तो हम लोग किसके मदद से बनाएंगे? जब भी मैं पूछूं बेस लाइन के लिए कौन सा टेप यूज करोगे, तो कौन सा करोगे? इन्वर्टिव। इनवार टेप, वेरी गुड। ऐसे ही क्लोथ और लाइनन टेप मेड अप ऑफ द क्लोथी वोमेन लिनन सिंथेटिक मटेरियल, दिस टेप दस क्लोजली नॉट रिमेन स्ट्रेट ड्यूरिंग द हाईली वेदर। सिंपल सी बात है, क्लोथ एंड लाइनन से बना हुआ है, जब हवा चलेगी ना तो हवा के साथ साथ उड़ने लगेगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब मेटेलिक टेप भी थोड़ा बहुत अच्छा है, इट इज मेड अप ऑफ लाइनन विद द ब्रास वोवन विद वार्निश। बस मेटेलिक टेप याद कर लो, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते थे, है ना। इनवार टेप इट इज द अलॉय ऑफ द स्टील एंड द निकल, 64% 36%। ये पूछा गया है इनका रेशियो कितना होता है, स्टील कितना निकल, तो 64% निकल स्टील होता है और निकल होता है 36%। इट इज हाईली एक्यूरेट एंड हैव लेस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बट दिस टेप रिक्वायर मोर अटेंशन इन हैंडलिंग एज इट इज सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड इजीली। इसको भी यूज करने के लिए आपको मतलब प्रॉपर वो चाहिए, है ना। दिस टेप इज वेरी एक्यूरेट, सो बेस लाइन मेजरमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ इनवार टेप। क्लियर? अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग सीरीज में, चेन सर्वे में करोगे तो क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो वी विल यूज द, व्हाट वी विल यूज, पैग्स यूज करते हैं। पैग मैंने बताया था कौन सा वाला पैग है, ये वो वाला पैग नहीं है जो हम लोग पैग लगाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वहां से शुरू करते हैं, मैंने दिखाया था, एरो करके गोल घूम के जाता है ना, तो वो पैग हो गया। इसकी थोड़ी सी डायमेंशन आपको ध्यान रखनी है, दैट इज मैंने बताई थी, वो फिगर दिखा गया ना, 50 mm और 4 mm 5 बताया था, ये मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ अभी आप लोग को, है ना। और रेंजिंग रॉड हम लोग यूज करते थे, दैट इज फ्रॉम, रेंजिंग रॉड की हाइट क्या थी, 2 to 3 मीटर। ठीक है, वेरी कर सकते हैं। उसमें बताया था रेड और व्हाइट स्पॉट होते हैं, है ना, दिखाया था ना उस दिन रेंजिंग रॉड, याद हाँ सर। है ना। तो अभी फिर से वही रेंजिंग रॉड कर रहे थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ना टेप और चलो मेरे को बताएगा कोई कि आपको पास चेन और टेप दोनों है, किससे आप मेजरमेंट करोगे, चेन से या टेप से? फटाफट। तो मैं तो टेप से। कौन? अंकिता टेप से करेगी, और हर्षिता? सर चेन से। चेन से। दोनों बताओगे व्हाट इज द रीजन? अंकिता टेप से क्यों? तो मेजरमेंट इजियर होता है। मेजरमेंट इजियर होता है। क्या सर?
अंकिता बोल रही है कि इजी होगा टेप से। सर चेन से इसलिए क्योंकि वो पीछे वाला चलेगा तो इजी रहेगा, दो लोग एक साथ मेजरमेंट करेंगे, वो पॉइंट्स लगते जाएंगे वहां पे। देखो अब आज भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स में ना चेन पड़े हुए हैं, ठीक है। चेन है, अगर टेप जब इतना ही फायदा दे रहा है तो हम टेप से ही मेजरमेंट करें, क्यों चेन का वो करें। देखो ऐसा नहीं है हर एक चीज के लिए ना। अब आपको पढ़ाने जाता हूं मैं, देखो मैंने हमेशा उससे बताया कि उससे डीमेरिट या फेलियर हम पहले पढ़ते हैं ना। अब आप करेक्शन देखोगे ना, करेक्शन इन द चेन आर ऑफ ओनली टू टाइप्स। चेन में अगर आप करेक्शन देखोगे दो टाइप के करेक्शन होते हैं। कौन कौन से? करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड करेक्शन फॉर द स्लोप। सिर्फ दो टाइप के करेक्शन होते हैं इन केस ऑफ चेन, ठीक है। बट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ करेक्शन इन द टेप। सुनोगे कौन कौन से? करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर द स्लोप, करेक्शन फॉर द टेम्परेचर, करेक्शन फॉर द सैग, करेक्शन फॉर द मिसअलाइनमेंट, करेक्शन फॉर द एमएसएल, करेक्शन फॉर द पुल। याद हुआ क्या क्या बोला मैंने? हमारे पास टेप में 7 तरीके के करेक्शन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम चेन में हमारे पास 2 तरह के करेक्शन है, तो क्यों ना हम चेन का यूज करें। समझ में आया? हाँ सर। हाँ लेकिन अभी भी खुद से सोच के बताओ, चेन इज मतलब चलो आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, पता है चेन जब उठा के देखोगे ना इतना हैवी होता है ना, इतना टीडियस टास्क होता है, गए मिट्टी में पूरी, ठीक है, चेन लगाए। अब क्या होता है, ग्राउंड आपको आपके हिसाब से तो मिलेगा नहीं, ग्राउंड में जंगल भी होगा, ठीक है, ग्राउंड में मिट्टी भी होगी, ठीक है। अब जो आपने चेन यूज किया ना, चेन में देखो क्या होता है ना, इस तरीके का देख रहे हो, ये तरीके के 2 लिंक होते हैं। मैंने उस दिन चेन दिखाई थी ना, चेन दिख रहा था ना, अलग अलग होते हैं, ये 2 लिंक हो गए। ऐसे लिंक लिंक से कनेक्ट होती है चेन। अब इन 2 लिंक के बीच में अगर मिट्टी घुस गई तो अब इंजीनियर का तो काम नहीं है, और खासकर आर्किटेक्ट और खासकर आप लोग होगे तो क्या चेन पहले सर्वे करोगे उसके बाद आके चेन धुलोगे क्या? बताओ, सच सच बताओ, नहीं धुलोगे ना। तो क्या हुआ, इस लिंक के अंदर चेन में मिट्टी घुस गई। अब ये मिट्टी घुस गई, इसने क्या किया, ये इतना गैप था इसके अंदर, ठीक है, इस गैप को दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, इस गैप को मिट्टी ने भर दिया। अब ये चेन ना इधर हिल रही है ना उधर हिल रही है। अब जब अगले दिन आप साइड पे मेजरमेंट करने गए ना, तो वो 30 मीटर की जगह आपको 29 मीटर ही मेजर कर रहा है। तो समझ लो कि कितनी एरर आ रही है, ठीक है। तो ये होता है लाइव जब हम प्रैक्टिकल कोई चीज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हमारे टेप में क्या होता है, टेप का एक बार यूज किया, हल्की मिट्टी मिट्टी लगी, एक बार झाड़ दिया तो काम हो गया, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ऐसी चीजें होती हैं। जबकि चेन में सिर्फ 2 करेक्शन लगा रहे हो आप, और टेप में देखो टेप का ज्यादा यूज कर रहे हो ना, इसलिए बहुत ज्यादा करेक्शन लगाने पड़ रहे हैं ताकि आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग है। और देखो इसी चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करवाती है, चेन से भी करवाती है और टेप से भी करवाती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि आजकल चेन का यूज नहीं हो रहा। अगर बता रहा हूं कोई अच्छी पोस्ट पे है ना, असिस्टेंट इंजीनियर है, तो उसको अब गवर्नमेंट में तो इतना काम है नहीं, तो वो जूनियर इंजीनियर को परेशान करने के लिए क्या बोलेगा, जाके चेन से मेजर करके आ। जबरदस्ती उसके पास सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो काम करवाएगा ना। तो इसलिए चेन सर्वे का यूज किया जाता है। आप बोलोगे कि सर तब तो वेस्ट ही है, नहीं, वेस्ट की बात नहीं है। कई बार चेन सर्वे हमें एक्यूरेट रीडिंग दे देता है, ठीक है। तो पता चल जाता है, क्रॉस वेरीफाई हो जाता है दोनों चीज से, कि हो सकता है टेप में कुछ कमी की गई हो, एरर किया गया हो, क्योंकि देखो सब इतना ना तो इंजीनियर्स के पास टाइम है ना तो इतना आर्किटेक्ट्स के पास टाइम है, ठीक है। तो ये चीजें फैक्चुअल मतलब एक्चुअल में तो करता कोई और ही है, ठीक है। तो हमें बस रिकॉर्ड बनाना होता है, तो हम 2-3 से क्यों ना वेरीफाई करवा लें। तो ये चीज होती है, ठीक है। इससे ये भी पता चल जाएगा अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग बंदों से भी जो एरर आ रही होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो दोनों में अब किसी ने 100 मीटर किया, किसी ने अब 400 मीटर कर दिया, तो ये डिस्टेंस क्या मतलब, ये जो मेजरमेंट हुआ बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। 100 का 110 120 चलेगा, समझ गए। तो वो ऑन एन एवरेज दोनों का लिया जाता है। क्लियर? ठीक है। तो इसलिए हम दोनों चीज का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते। इसलिए तो आप चेन पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर अगर यूज ही नहीं होता तो पढ़ते ही नहीं, है ना। तो आपके यहाँ भी कॉलेज में चेन पड़ी हुई है, ठीक है। तो चेन देख लेंगे अभी अगर पहुंचेंगे तब, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके बताए, करेक्शन और थोड़ा करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे करेक्शन कैसे निकालते हैं ना, आपको एकदम याद करवा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 20 मीटर की चेन थी, आप गए फील्ड पे, ठीक है। जैसे ही फील्ड पे गए, अब फील्ड पे तो आपने मेजर कर लिया 20 मीटर के हिसाब से, है ना, लेंथ को मेजर कर लिया। लेकिन एक्चुअली आपको पता चला कि चेन में डिफेक्ट आ चुका है, चेन जो है 19 मीटर की ही थी, ठीक है। चेन की जो लेंथ है दैट इज 19.92 मीटर, ठीक है, एक्चुअल में। अब मेरे को बताओगे कि जब ग्राउंड पे आप गए तो ग्राउंड पे आपने कितना मेजर किया होगा। मान लो 300 मीटर आपको मेजर करना था, तो 300 मीटर अगर 19.92 चेन से आप मेजर करोगे तो 300 का ज्यादा मेजर करोगे या कम, सोच के बताना फटाफट से। सर फिर से क्वेश्चन। हाँ फिर से एक बार क्वेश्चन,
देखो हर्षिता गई, हर्षिता के पास 20 मीटर की चेन थी, ठीक है अंकिता, क्लियर, ठीक है 20 मीटर की चेन थी, और एक्चुअल में क्या हुआ, चेन रखे रखे कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो चेन कितने की थी, 19.92 मीटर, मतलब कम की चेन थी, ठीक है, लेकिन हर्षिता मान के जा रही है कि मेरे पास तो 20 मीटर की चेन है, ठीक है, और वो जाके 300 मीटर के एरिया को, 300 मीटर की लेंथ को मेजर कराई, ठीक है, तो ये मैं ये पूछ रहा हूं कि उस जो चेन थी, अब ये अंकिता को पता था कि ये 20 मीटर की तो है नहीं, ठीक है, तो मजे लेने के लिए अंकिता ने हर्षिता को भेजा कि जाके मेजर करके आ, 300 मीटर है, देखते हैं 300 मीटर को तू क्या मेजर करके आती है, ठीक है, तो अब जब अंकिता को पता था कि ये तो 19.92 की चेन है, ठीक है, वो मेजर करेगी तो गलत मेजर करके आएगी, और मैं इसको फिर आएगी तो मैं सर से डांट पड़वाऊंगी इसको, ठीक है, कि इसने 300 मीटर जो लेंथ थी उसको गलत मेजर कर दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हर्षिता गई 19.92 मीटर की चेन से जब उसने मेजर किया तो उसको ज्यादा लेंथ मिलेगी या कम लेंथ मिलेगी, सोच के बताओ। कम लेंथ मिलेगी। हर्षिता कम मिली ज्यादा मिली, तुम बताओ, तुम तो गई थी। सर कम मिलेगी। पक्का? हाँ। दोनों ना, दोनों। हाँ सर, बिकॉज तो वो 20 मीटर चल चल के जाएगी और एक पॉइंट में तो खत्म हो जाएगा। तो कम मिलनी चाहिए लेकिन ज्यादा लेकिन मिलनी चाहिए, बताओ। लेकिन वो तो देखो अब बताता हूँ 19.2 को प्रैक्टिकल 20 समझ के जा रही है ना। सुनो सुनो सुनो, ये है 300 मीटर, ठीक है, ये है 300 मीटर, समझ में आ रहा है, ये लेंथ है 300 मीटर, अब मेरे पास 20 मीटर की चेन है, ठीक है, 20 मीटर 20 20 20 20 कितनी चेन हो जाएगी, बताओ। 300 चलो अब मैं, और चलो मान लो 200 मीटर है, सुन लो सुनो, 15। 200 मीटर है, सुन लो, सुनो, 200 मीटर है, ठीक है, ये 200 मीटर है, 20 चेन 10 चेन होनी चाहिए, 10 चेन में मेरा 300 मीटर मेजर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो है 19 है, मतलब कम कम है, कम कम मेजर करेगा तो क्या, अब बताओ मेरे को 20 चेन में कितना मेजरमेंट हुआ, 20 चेन में मल्टीप्लाई कर दो 190 इंटू 2 तो 300 कितना, सॉरी 10 करो ना, तो कितना हुआ मेजर हमारा, 190 मीटर ही मेजर हुआ, समझ में आया, 20 चेन से आया, समझ में नहीं आया। सर लेकिन उसको पहले से पता है कि 300 या फिर 200 मीटर्स वहां पे खत्म होगा करके। हाँ मैं वही तो बताया ना, मैंने कहा 300 मीटर को लेंथ मेजर करना था, मैंने यही बोला, क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से सुनते नहीं हो, मैंने 300 मीटर, अब चलो देखो क्वेश्चन है 200 मीटर हमें मेजर करना था, ठीक है, 200 मीटर यहाँ फिक्स, यहाँ एंड, यहाँ पॉइंट फिक्स था, यहाँ पॉइंट फिक्स था, इतने ही बीच की लेंथ को मेजर करना था, ठीक है, तो अब जो 20-20 मीटर कर रहा था वो 19-19 मीटर कर रहा था, ठीक है, तो 19 मीटर में 20 चेन 190 मीटर पे खत्म हो गई, समझ में आया, हाँ सर, हाँ तब तो है वो ना, था। तो अब जो 10 मीटर ये एक्स्ट्रा हर्षिता मेजर करके लाएगी, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन जो मैंने 300 था वो 300 से ज्यादा वो मेजर कराएगी, ठीक है, वो बताएगी, में आया, आया या नहीं आया बताओ, हाँ सर। है ना, अब यही याद रखना, जब शॉर्ट हुई ना तो कहने का मतलब है ये हमारा लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, जो होगी, तो अब इसका हमारे पास डायरेक्ट है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हमारी शॉर्ट हो जा रही है, हमारी चेन जो शॉर्ट हो जा रही है, तो एरर क्या आएगा, एरर विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ फटाफट, अब तो बता दिया, इतना देर क्यों लग रहा है, एरर क्या होगी, सर वो 10 एक्स्ट्रा टीम्स की। पॉजिटिव या नेगेटिव अंकिता, मैं पूछ रहा हूं, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, एरर अभी डिफाइन किया ना मैंने, आज बताया ना एरर क्या बोलते हैं, एरर इज, क्या हुआ आज सब ऊपर से जा रहा है क्या सबके, नहीं सर, नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है, फिर एरर क्या होती है, नहीं मेजर्ड समझ वैल्यू आ रहा है माइनस, सर। हाँ हाँ तो फिर मेजर्ड वैल्यू कितनी हुई, ज्यादा हुई, और ट्रू वैल्यू हमारी कम थी, तो हमारा एरर क्या आएगा, तो लेकिन कौन से को पॉजिटिव बोलते हैं कौन से को नेगेटिव बोलते हैं वो नहीं याद है मेरे अच्छा सिंपल सी बात है, अगर प्लस आए तो पॉजिटिव हो गया ना, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है को। और ट्रू वैल्यू कम है, तो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हाँ में तो से ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है कम सर। माइनस करेंगे,
पॉजिटिव एरर, सिंपल सी बात है। अगर हमारी चेन शॉर्ट हो जा रही है तो वी विल हैव पॉजिटिव एरर, अगर हमारी चेन की लेंथ बढ़ जाएगी तो वी विल हैव नेगेटिव एरर। क्लियर हुआ? यही चीज बतानी हाँ थी। सर। हर्षिता यहीं पे हो? क्या हो गया हर्षिता को? हर्षिता लगता है हर्षिता का नेटवर्क गया। ये चीज क्लियर हुई? हाँ सर। ये हर्षिता का पता नहीं क्या हुआ। चलो मैं आगे बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो जाएगा तो हर्षिता देख लेगी वैसे, है ना। नाउ व्हाट इज, अब मैं करेक्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। अगर करेक्टेड डिस्टेंस निकालनी हो तो यू विल हैव एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप, आपके पास एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय द नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप मल्टीप्लाइड बाय द मेजर डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सही डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, कि एक्चुअल आपने कितना मेजर किया है, ठीक है, जो जैसे 300 का 300 से ज्यादा आया तो वो एक्चुअल जो करेक्टेड डिस्टेंस निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ इज अगेन 19 जो मैं कम बता रहा था, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ कितनी 20 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय द मेजर डिस्टेंस। ये हर्षिता तो चली गई। हर्षिता क्या हुआ? हाँ सर, नेट चला गया था। हाँ चलो मैं वही चीज बता रहा था कि हमारी अगर चेन टू शॉर्ट हो जाए तो यू विल हैव पॉजिटिव एरर, अगर टू लॉन्ग हो जाए तो यू विल हैव अ नेगेटिव एरर। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। नाउ यू हैव टू, ये हमने करेक्टेड डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? करेक्टेड डिस्टेंस हम तब निकाल पाएंगे जब हमें, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप, एक्चुअल लेंथ हमारी जो 19 मीटर थी डिवाइड बाय द नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ कितनी है 20 मीटर की चेन थी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द मेजर डिस्टेंस, कितना हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 300 मीटर मेजर कर रहे थे, 19 हमारी एक्चुअल लेंथ थी टेप की, और 20, 19 बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो हमारे क्या निकल जाएगा, करेक्टेड डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर? दिस इज फॉर द करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द करेक्शन फॉर द स्लोप। अब स्लोप क्यों आता है? सिंपल सी बात है, जब आप सीधे ग्राउंड पे चलोगे तो आपका स्लोप नहीं आएगा। स्लोप क्या होता है, इससे थोड़ा सा भी एंगल ग्राउंड से थोड़ा सा भी ऊपर आ जाएगा तो दैट विल बी योर स्लोप, ठीक है। तो ऊंचा नीचा हमारा आता रहता है, तो स्लोप की भी कारण भी कोई एरर आती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। करेक्शन फॉर द स्लोप इज एच स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है। एच इज व्हाट द हाइट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। आपका कहने का मतलब है जो करेक्शन फॉर द स्लोप होगा ना, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, इसका मैं कारण बता देता हूं। देखो जब ये लाइन आप मेजर करोगे, आप तो चेन से ये वाली लाइन मेजर करते हो, लेकिन आपको ये वाली लाइन चाहिए तो ये हमेशा इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हमेशा इससे बड़ी है, तो बड़ी होने के कारण क्या होगा, हमेशा नेगेटिव एरर आएगा, ठीक है। मतलब एरर एरर क्या होता है हमारा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। हम जब हमारी ट्रू वैल्यू ये थी और ये मेजर्ड हम क्या कर रहे हैं, बड़ा मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू हमेशा ज्यादा है तो हमारा जो एरर आएगा वो, सॉरी एरर तो हमारा पॉजिटिव आएगा, करेक्शन जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। करेक्शन हमारा नेगेटिव है क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारी एरर तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमें अप्लाई क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन, तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब ये थे, दिस इज द करेक्शन फॉर द चेन। अब इसी तरह टेप में होते हैं करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर द स्लोप, करेक्शन फॉर द टेम्परेचर, क्योंकि देखो टेप में टेम्परेचर का भी इफेक्ट आएगा। टेम्परेचर का मैंने बताया था अल्फा टी नॉट माइनस टी करके जो आएगा, दैट इज करेक्शन फॉर द टेम्परेचर, ठीक है। सैग के कारण, सैग के कारण कैसे, टेप हमारी क्या हो जाती है, कई बार हमारी मूव कर जाती है, ठीक है। वही वाला डिफ्लेक्शन वाला एग्जांपल याद करो, धीरे धीरे सैगिंग आने लग जाती है टेप में भी, टेप भी हमारी खिंच जाएगी, ठीक है, तो सैगिंग आ जाएगी। मिस अलाइनमेंट, आपने सीधा नहीं पकड़ा होगा, थोड़ा भी टेढ़ा पकड़ोगे तो उसके कारण भी कुछ करेक्शन आएगा, ठीक है। एमएसएल मीन सी लेवल के कारण भी कुछ करेक्शन आएगा, क्योंकि जो मैंने बताया था हम लोग जो लेते हैं बॉम्बे हाई से, वो हमारा क्या 19 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम भी उसके कारण भी कुछ ना कुछ एरर आएगी तो उसके लिए भी हम करेक्शन ले लेंगे, ठीक है। फिर करेक्शन फॉर पुल। अब पुल आए, अब मान लो क्या बोलते, कृतिका आई, कृतिका का मन आया बहुत तेज से खींच देगी, ठीक है, तो तेज से खींचने के कारण उसके अंदर भी कुछ इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो इलोंगेशन के कारण वही वाला जो हम लोग ने इलोंगेशन पढ़ा है ना,
elongation is equal to PL upon AE, तो उसी के कारण एक करेक्शन आएगा। तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है, फॉर्मूले थोड़े से देख लेना बस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द लीनियर मेजरमेंट, यही चीज थी लीनियर मेजरमेंट में। अब अगली बार इतनी चीज पढ़ के आओगे, मैं इन पे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना, दोनों क्लास अच्छे से पढ़ के आओगे तो इन पे मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अच्छी जगह के, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पहले तो पढ़ना है। क्लियर हुआ लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, क्लियर हो गई, स्केल क्लियर हो गया, लीनियर मेजरमेंट, इतनी चीजें करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में विल हैव क्वेश्चंस। क्लियर? यस सर। अभी तक कोई डाउट? सर वो सर एक बार फिर से देखने वाला पड़ेगी बता वीडियो। दीजिए। क्या बता दूं फिर से? सर वो चेन छोटी थी तो वो वाला पार्ट, मेरा नेट चला गया था तो सुन नहीं पाई। अच्छा हाँ, देखो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था अभी, जैसे हर्षिता गई थी किस लिए, हमारा मान लो क्या था, 200 मीटर की लेंथ थी, ठीक है, 200 मीटर की लेंथ थी जिसको मेजर करने गई थी। आपको क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था ये 200 मीटर है, यहाँ पे एक वो फिक्स कर दिया गया, यहाँ पे एक चीज फिक्स कर दी गई, ठीक है, ये बता दी गई ये 200 मीटर है। अब इसको आपको मेजर करना है, ठीक है। अब आप 20 मीटर की चेन ले गई, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10 चेन में मेरा हो जाएगा काम, लेकिन वो एक्चुअल में अंकिता को पता था कि ये चेन कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जब आप गई वहां पे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन से आप कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, छोटा हो जाना, ठीक है, 20 ना होगे, 20 से थोड़ा सा छोटा होना। अब ऐसा नहीं कि 20 से 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है, कुछ होती है दैट इज इन पॉइंट, मतलब 0.008 करके कुछ, मतलब बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन होता है जो आप पता नहीं चल पाएगा, है ना, मीटर में पता ही नहीं चल पाएगा, सेंटीमीटर में होगा वो। तो मैं 19 पॉइंट लगभग मान के चल रहा था, कुछ छोटी हो गई। तो अब आप गए वहां पे, आपने मेजर किया 20, मतलब 20 मीटर लेके चल रहे हो, लेकिन जब 190 मीटर पे जब आप पहुंचे, आपकी चेन खत्म हो गई, मतलब 20 चेन वहां पे हो गई, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 हमारा, सॉरी 20 मल्टीप्लाइड 10 चेन में आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, 10 चेन पहले ही कंप्लीट हो गई, अपार्ट फ्रॉम जब तक आप 200 मीटर पे पहुंचते। तो अब आपने आया कि यार मैंने तो 20 मीटर की चेन ली थी, मेरा 10 चेन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है, तभी तो 200 मीटर हो जाते, लेकिन वो 10 चेन में पहले ही कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ एरिया बच गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप शॉर्ट चेन से मेजर करोगे तो लेंथ आपकी जो होगी दैट विल बी इंक्रीज। समझ में आया? हाँ सर। जो मेजर डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है एरर क्या होती है, एरर विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आपकी मेजर्ड वैल्यू तो 200 से ज्यादा है और ट्रू वैल्यू कितनी है, 200 है। अब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज योर एरर। अब एरर कैसी आई, पॉजिटिव आई। समझ में आया? जब आपकी चेन शॉर्ट हो जाती है तो यू विल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यू विल आंसर कि हमारा क्या हो गया, हमारा जो एरर आया दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरह अगर चेन की लेंथ बढ़ जाए तो हमारा क्या एरर आएगा, एरर विल बी नेगेटिव। क्लियर है ना? तो यही चीज मैं बता रहा था, बस और कुछ नहीं बताया। बाकी मैंने ये बताया करेक्टेड डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो करेक्टेड डिस्टेंस के लिए यू विल हैव द व्हाट, आपको पता है कि मेजर्ड, आपके जो मतलब मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड डिस्टेंस आपने कितना किया। देखो इसका एग्जांपल लेके मैं बता दे रहा हूं कि कहने का मतलब है जब आपको करेक्टेड डिस्टेंस जो अभी आपने मेजर किया ना, आप करोगे 200 से ज्यादा करोगे, ठीक है, 202 203 मीटर जो भी आप मेजर करोगे, तो ये 203 मीटर आएगा कैसे, इन द फॉर्मूला यू विल हैव करेक्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, यू विल हैव द, मतलब जो आपने आपको करेक्टेड, आपको ये पता होगा कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ योर टेप, ठीक है, करेक्टेड लेंथ याद रखना। करेक्टेड लेंथ में कौन सी लेंथ आएगी, 19 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय द नॉमिनल लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द मेजर डिस्टेंस, ठीक है। तो दैट विल बी 19 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो इससे आपको कुछ ना कुछ लेंथ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यू विल हैव द करेक्टेड डिस्टेंस। तो इनका फॉर्मूला यूज करके यू विल हैव द न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर ये डिस्टेंस है, ये हो गई है, तो इसके कारण क्या होगा। और एक और श्रिंकेज फैक्टर के लिए क्या होगा, ठीक है, श्रिंकेज फैक्टर, तो इन पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे थोड़ा सा कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर आप लोग खुद से देख लो तो ज्यादा बेटर है, और इससे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लगाओ जितने हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। अगली बार मैं भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो वी विल हैव अ डिस्कशन और क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है अंकिता, कुछ पूछना है? नहीं सर। एक बार अंकिता पढ़ लेना, ठीक है,
हाँ सर। पुरानी चीज भी पढ़ोगी तो समझ में आएगा, है ना, पुराना लेक्चर भी और ये वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, तो दोनों चीजें एक बार पढ़ लो, है ना, पढ़ के आओगे तो मतलब बहुत सी चीजें, क्वेश्चंस होने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस भी अगर लगाने का टाइम मिले तो क्वेश्चंस लगा लो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी फिर मैं तो क्वेश्चंस लगवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव अ क्वेश्चन सेशन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मैं यहीं पे दूंगा आपको करने के लिए। क्लियर? चलो फिर, और हाँ कोई हाँ सर। सर। दिक्कत, और कोई, क्या बोलो अंकिता? नहीं सर, वही बोले कि हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन।